या सब लोग आ गया 15 ओनली आ रहा है सर द टाइम 12:03 तो वी वर स्टडिंग अबाउट क्या किसके बारे में वायरस बोलेगा पिटाई लगेगा वायरस नहीं है ना स्प्रेडशीट चालू कर दिए थे याद है वायरस वी हैड कंप्लीटेड नाउ वी आर इन स्प्रेडशीट सो where are those yeah it is over here. So I think we had discussed about the features of spreadsheets और MS Excel. MS Excel के फीचर्स के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं अभी I think I had also said you about the number of rows and columns in spreadsheet in MS Excel. MS Excel का एक वर्कशीट में कितने कॉलम्स होते हैं और कितने रोज होते हैं there are 1048576 1048576 rows and 16,384 columns. Okay. बाबा रे आ ही रहा है रे बाबा सब आ रहा है आने दो आने 23 24 एक जन और इंतजार कर रहा है या सो वी आर नाउ I think this the regular students and few more may come. So before we discuss anything about more about spreadsheet, so here is the components of MS Excel. So for that reason, we need to share the screen. बस कितना कुछ खुला हुआ है रे. It may work little slow. So let me first close all the things there. इसको भी बंद कर देते हैं नहीं इसको नहीं कर सकते ये रहेगा इसको बंद कर देते हैं इसको भी बंद कर देते हैं इसका एक बंद कर देते हैं हाँ हो गया तो लेट अस टॉक अबाउट और सी what all are there in spreadsheet. Now you can see this is Excel, MS Excel. Just open it and we will see what all are the things there on the Excel screen. Excel screen पे क्या क्या होती है. So first of all, on the screen, when we open, this is mine is 2019 Office 2019 मेरा ऑफिस है 2019 ऑफिस है तो यहाँ पे देखो वर्कबुक वेलकम टू एक्सेल मतलब ये एक्सेल के बारे में थोड़ा टूर वगैरह करा देगा मतलब कुछ और जानकारी दे देगा ड्रॉप डाउन ट्यूटोरियल्स अगर हम लोग को कुछ सीखना है एक्सेल के बारे में और जानकारी लेना है तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं then we have you can see this is a video thing drop down tutorials from so we can create a new kind of tutorial for MS Excel में tutorial हम लोग
बना सकते हैं, है ना। अब देखो यहाँ पे ये जो है खोल देता है क्या, एक्सेल नहीं है ये जो है अब एक्सेल नहीं है, एक्सेल के साथ साथ ये पावर पॉइंट में भी आ गया है। तो वी डोंट नीड इट, हम लोग को ये नहीं चाहिए। बंद करो, जा पूरे बंद हो गए बाय मिस्टेक। ओके, need not to uh, click on those other options, those will be advanced ones. Then formula tutorial, you can see more templates are there. Means these are the templates, those actually we can create the sheets very easily, and those are already pre-formatted. जो पहले से फॉर्मेट किया हुआ है, देखो सारा फॉर्मेटेड है, पहले से किया हुआ है. We need not to do anything, we just need to type in. These are the few examples of templates. I think you had learned about templates in class 5 or 6, where you have presentations. Presentation software के बारे में पढ़े थे. I think it is in class 5, where we have learned about presentation software like MS PowerPoint. And then there we had learned about templates, then all other features of animation, say the transition, page transition. ये सारा हम लोग क्लास 5 में कर चुके हैं. तो वहीं पे हम लोग टेम्पलेट्स पढ़े थे. क्या होता है टेम्पलेट्स? द प्री फॉर्मेटेड document or presentation. Here it is pre-formatted Excel sheets or worksheets. Okay, so we don't need them. We are just going to click on blank. So when we click on blank, don't look at the top. ये वाला नहीं, ये वाले पोर्शन मेरा टास्क बार है. ये एक्चुअली नीचे होता है. कहाँ गया? ये सबके कंप्यूटर में नीचे रहता है और मेरे कंप्यूटर में हम इसको कहते हैं ऊपर सेट किए. इट डजंट मैटर, इसको हम ऊपर सेट किए थे. ठीक है, तो ये अलग बात है हम कहाँ पे सेट कर रहे हैं. कहाँ चल गया? हटो. ये कहाँ से आ गया? इसको तुम कभी चालू ही नहीं किया. हटता भी नहीं है. वी कैन change the position of the taskbar. तो ये खाली जगह पे पकड़े और ऊपर हम लोग, मेरा यहाँ पे रहता है. ठीक है, तो that is taskbar. Don't look at that. Just below that taskbar, what all are there? This is the, you can on the top, this one where book one Excel is written. Then you can see the image of save, undo, redo, and there is some options, file related options. Then you have this ribbon display option. Means if you want to display the ribbon or we don't want to display the ribbon, or auto hide the ribbon. Now what is ribbon? Ribbon is this part. ये वाला हिस्सा. Let me draw as something around it so that you can understand what is the ribbon. रिबन किसको बोलते हैं समझा देते हैं ना. रिबन हम लोग का है, देख लेना, जो हिस्सा हम ड्रॉ कर रहे हैं. नॉट द लोअर पार्ट. इतना भी हैंड राइटिंग मेरा कंट्रोल नहीं है माउस पे. सो दिस पार्ट इज द रिबन. ये वाले पार्ट है रिबन. ठीक है, और दिखा रहे हैं. आई थिंक ऑल ऑफ यू नो दिस प्रीवियसली, पहले से ही जानकारी इसकी है. दिस इज द टाइटल बार. पहले भी हम लोग वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट में देख चुके हैं पहले भी. ये हो गया टाइटल बार. उसके नीचे ये जो पोर्शन है जहाँ पे कुछ लिखा हुआ है टेक्स्ट में, दिस इज द मेनू बार, है ना. ये होता है. उसके नीचे ये रिबन, ये वाला हिस्सा रिबन है, ये वाला हिस्सा रिबन. रिबन के नीचे क्या है? दिस इज अ नेम बॉक्स. ये हो गया नेम बॉक्स.
ठीक है, और ये है फॉर्मूला बार, ये जो लंबा सा बार दिख रहा है खाली जगह, ये है फॉर्मूला बार। सो दीज आर द कंटेंट्स। बिसाइड दैट, अगर उसके अलावा और भी कुछ देखना चाहते हैं तो नीचे है, उस साइड में है। तो लेट मी हाइड द स्क्रीन नाउ। दिस इज, बताओ, स्क्रीन हाइड किया तो साथ में वो भी चल गया, क्या बोलते हैं एनोटेशन वाले, है ना, ये भी चले जा रहा है। तो अब इसको यहाँ पे थोड़ा देर रखते हैं। नाउ दिस इज द हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है। अब इसको हटाते हैं। नाउ सी हियर, दिस इज द वर्टिकल स्क्रॉल बार, ये वाला है वर्टिकल स्क्रॉल बार यहाँ से नीचे तक। So these are the things, those are there on my, on our what is said, the MS Excel window, है ना। And beside that, what all are there? These all columns, all these are columns, and all these are rows. अब कॉलम और रो को अगर हम लोग सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे जो पोर्शन बन, कॉलम और एक रो सिलेक्ट किए तो देखो यहाँ पे जो पोर्शन बना, इसको बोला जाता है सेल। Number of columns and number of rows I had already said. So you can find the number of cells. Multiply कर लो। मेरे को टेंशन मत देना, सर मल्टीप्लाई करके बताइए ना। आई डोंट वांट टू से दैट मे बी इन बिलियंस। ओके, बिलियंस क्या, ट्रिलियंस में चल जाएगा। ट्रिलियंस ऑफ सेल्स आर देयर। सो नाउ कम्स कंपोनेंट्स ऑफ वर्कशीट। वर्कशीट के कंपोनेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो वर्कशीट का पहला कंपोनेंट होगा ऑब्वियसली द पार्ट वेयर वी वर्क, जहां पे हम लोग काम कर सकते हैं। पूरे पेज में तो काम कर ही सकते हैं ना, मगर पूरे पेज में भी अगर काम करना चाहते हैं तो वहां पे भी देखो पर्टिकुलर जगह, ये जगह बना हुआ है। हम लोग को जो भी काम करना है इसी में से किसी एक में कर सकते हैं, है ना, इसी में से किसी एक में काम करेंगे। तो ये हो गया सेल। व्हाट इज सेल? The area formed by intersection of rows and columns. The area that is formed by intersection of rows and columns is called a cell. Okay. Then what is active cell? The cell on which we are currently working. जिस सेल पे हम लोग करंटली काम कर रहे हैं उसको बोला जाता है एक्टिव सेल। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दिस बॉक्स? इस बॉक्स का नाम क्या बताए थे? भूल गया इतना जल्दी? नेम बॉक्स, है ना, नेम बॉक्स। तो नेम बॉक्स, यू कैन सी इट शोज द नेम ऑफ द एक्टिव सेल। देखो चेंज कैसे हो रहा है, देख रहा है चेंज हो रहा है कैसे? N18, A3, B6, C2, D14, F3, कैसे पता कर रहे हैं? Now, as we had selected the active cell, you can see the column. एक्टिव कॉलम का कलर देखो थोड़ा ग्रे हो गया, डार्क हो गया, और रो का कलर भी देखो डार्क हो गया, और साथ में ब्लू ग्रीन कलर का अंडरलाइंड भी आ रहा है। सो दिस वे वी कैन फाइंड द नेम ऑफ आवर एक्टिव सेल। सो व्हेन वी राइट द नेम ऑफ आवर एक्टिव सेल, द फर्स्ट इज द कॉलम नेम। पहले कॉलम नेम लिखा जाता है, बाद में रो नंबर। तो कॉलम हो गया F, रो हो गया 3, F3, कॉलम हो गया O, रो हो गया 21, O21, कॉलम C, रो 11, C11। तो इस तरीके से जो है हम लोग
कॉलम जिस सेल में होते हैं उस सेल का कॉलम नाम हम लोग को दिखता है यहाँ पे। एंड व्हाट डज दिस डू, इसका काम क्या है, इसका काम क्या है अभी बताते हैं। कीबोर्ड ले रहे थे, है ना? तो इसका काम क्या है, टाइप करना। यहाँ पे हम लोग टाइप कर सकते हैं। सर यहाँ पे टाइप करना होगा, इतना मुश्किल? ना ना, वी डोंट नीड, वी टाइप हियर। जिस सेल में है उस सेल में टाइप करो, ऑटोमेटिकली वहां पे जाएगा। नाउ इफ यू वांट टू एडिट दिस, अगर इसमें हम लोग स्पेलिंग को सुधारना है तब हमको यहां से सुधारना पड़ेगा, समझ में आया? हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट सुधारेंगे। नाउ यू कैन सी, डायरेक्ट सुधारने का कोशिश कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, पूरे का पूरा कंटेंट चेंज हो जाता है ना? सो व्हाट वी नीड इफ वी नीड टू change the spelling of in a particular cell, we have two options. क्या, सेल पे गए, यहाँ पे क्लिक करेंगे, देन वी कैन मेक द नेसेसरी चेंज। ठीक, एक तरीका कैसे, क्या कैसे किया, सेल पे क्लिक किए, फिर फॉर्मूला बार पे जहां पे चेंज करनी है वहां पे क्लिक किए। दूसरा तरीका क्या है सर? ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा क्या है, वी डबल क्लिक ओवर हियर, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे। नाउ यू कैन सी द कर्सर ब्लिंकिंग। बिना डबल क्लिक का कर्सर ब्लिंक नहीं कर रहा है। सी हियर, सिंगल क्लिक, कर्सर इज नॉट ब्लिंकिंग। सिंगल क्लिक, cursor is not blinking. Now double click, the cursor is blinking. So when the cursor is blinking, we can make changes. ये अभी कौन है? अभी तुम्हारे क्लास में कोई तो है नहीं। I don't think there is anyone named as Abhi in my class. Okay, so what is the function of the formula bar? एक तो हम लोग सीखे क्या, इट शोज द कंटेंट ऑफ द सेल, सेल में क्या है ये दिखाता है। एंड देन इफ वी नीड टू एडिट द डेटा और द पार्ट ऑफ डेटा, वी कैन यूज द फॉर्मूला बार टू, क्या, टू एडिट। दो काम हो गया। एक बहुत इंपॉर्टेंट काम और भी है फॉर्मूला बार का। आई शो यू, आई शो यू, आई मेकिंग अ बिट चेंज। ठीक है, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। अब मान के चलो, मान के चलो, just see the data entries. टोटल करो, टोटल करो, टोटल करो फटाफट। मजाक कर रहे हैं ना? यस, मजाक कर रहे थे। टोटल करना है, क्या करेंगे, क्या किए, क्या किए, जस्ट क्लिक ऑन दिस एंड प्रेस द एंटर की, यू गेट द टोटल। नाउ सी हियर, फॉर्मूला बार पे ध्यान दे। अब क्या लिखा हुआ है, सम, करेक्ट, जबकि एक्चुअली में है कितना, 495, मगर यहाँ पे क्या दिख रहा है, नहीं समझ में आया, नहीं आया।
अब की बार देखो, सेल पे क्या लिखा हुआ है, 23, फॉर्मूला बार 23, सेल पे 15, फॉर्मूला बार 15, सेल पे 79, फॉर्मूला बार में 79, सेल पे 495, फॉर्मूला बार पे सम। सर ऐसे कैसे? This is because the formula bar shows the formula instead of the data if the cell contains a formula. फॉर्मूला बार क्या करेगा, फॉर्मूला या फंक्शन को दिखाएगा अगर उस सेल में कोई फॉर्मूला या फंक्शन है, और जब सिंपली डेटा रहेगा तो वो डेटा दिखाएगा। देखो 67 डेटा है, यहाँ पे भी डेटा बता रहा है, जबकि 495 इट इज नॉट द डेटा, इट इज द फॉर्मूला and it is also showing the formula. Now we had came across a very important feature of MS Excel is if we make changes for, ये यहाँ पे ध्यान रखना 495 है, हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको चेंज कर रहे हैं, इसको चेंज किया, 12 था चेंज किया, मैजिक है ना, 495 से 531 हो गया। I take another, I show you once more. See here, 531, we are going to change 23. 7 नंबर बढ़ाते हैं, 7 बढ़ाते हैं, तो 23 से 7 बढ़ाएंगे तो 30, 531 प्रेस एंटर की 538, 7 बढ़ाए थे, 7 बढ़ गया टोटल में। This is the most important feature of MS Excel. तो हम लोग क्या क्या जान लिया अभी तक? सेल क्या होता है, कॉलम क्या होता है, अपने MS Excel विंडो में क्या क्या चीज रहता है, टाइटल बार, मेन्यू बार, रिबन, नेम बॉक्स, फॉर्मूला बार, सेल, कॉलम, रो, then we have the horizontal scroll, we have the vertical scroll, ये वर्टिकल स्क्रॉल, और यहाँ पे देखो शीट, ये जो है मेरा एक शीट है, वर्कशीट, ठीक, ये सारा हो गया एक MS Excel विंडो का कंपोनेंट्स। ओके, देन ऑब्वियसली देयर इज समथिंग एल्स यू कैन सी हियर, यहाँ पे देखो जूम दिखा रहा है, प्रिंट प्रीव्यू दिखा रहा है, एंड देयर इज सर्टेन व्यूज, इसको हम लोग छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। 100% पे देख रहे थे, देखो परसेंटेज घटा रहा है, छोटा में जा रहा है, फिर परसेंटेज को क्या कर रहे हैं हम लोग 100% पे ला करके छोड़ रहे हैं। तो ये जूम व्यू है, जूम करके देख सकते हैं, है ना। सो these are the things we have on the MS Excel विंडो, यही सब है MS Excel विंडो पे। हो गया, अब आगे देखते हैं क्या क्या दिया। और सेल हो गया, एक्टिव सेल हो गया, रेंज, व्हाट इज रेंज? आई थिंक आई सेड यू प्रीवियसली इन द लास्ट क्लास, अगर नहीं भी बताया तो क्या टेंशन है। सेल इज द सिलेक्शन ऑफ adjacent cells, range is the selection of adjacent cells, शायद पहले कुछ गलत बोल दिए थे, है ना। तो रेंज क्या है, एडजेसेंट सेल्स को, अगर बहुत सारे एडजेसेंट सेल को हम लोग सिलेक्ट करते हैं तो उसी को बोला जाता है रेंज। देन कम्स नेम बॉक्स, बता दिए, फॉर्मूला बार बता दिए, कॉलम हेडिंग। नो व्हाट इज कॉलम हेडिंग इज, ये बी सी डी ई एफ, इसी को हम लोग बोल रहे हैं कॉलम हेडिंग। रो हेडिंग 1 2 3 4 5 6 7, ये जो रो नंबर लिखा हुआ है इसको बोला गया है रो हेडिंग, है ना।
तुम लोग देख सकते हो जैसे ग्रीन 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 होते जा रहा है। तो ये सारे हैं रो हेडिंग, और ये सारे ए बी सी डी ई एफ जी एच जो लिखा हुआ ये सारा हो गया कॉलम हेडिंग। मूविंग अराउंड इन स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट में आगे पीछे कैसे जाए, कैसे जाए। लेफ्ट में जाना होगा तो क्या, टैब। राइट में जाना होगा शिफ्ट टैब। नीचे आना होगा एरो, ऊपर जाना होगा एरो। दाहिने बाएं भी हम लोग कर सकते हैं एरो से, है ना। मगर जब टाइप कर रहे होते हैं, जब हम लोग टाइप करते हैं, जैसे मान के चलो अभी टाइप किए, अब जो है दाहिने बाएं नहीं होगा। हो रहा है मगर नहीं होना चाहिए। एनीवे इट इज वर्किंग। ओके, अब नहीं होगा। जब हम लोग एडिट मोड में आ जाते हैं तब देखो लेफ्ट राइट काम नहीं करता है ना, मूव अराउंड। तो कैसे करेंगे, एंटर मार दो, फिर जो है लेफ्ट राइट ऊपर नीचे सब काम करेगा। सो देयर इज वेज वी कैन यूज द एरो कीज, और नहीं तो चूहा है ना, चूहे से काम चला। माउस, यूज योर माउस, और टू स्विच सेल्स यू कैन यूज क्या, टैब की। ओके, नाउ अदर ऑप्शंस, पेज अप पेज डाउन, अगर एक से ज्यादा पेज हो तब ऐसे। और कोई तरीका, और कोई तरीका है। हम लोग किस सेल पे है, F5 पे है। नाउ प्रेस कंट्रोल होम, कहां पे पहुंच गए, A1 पे, पहला सेल पे। कंट्रोल एंड, कहा एंड, हाँ कंट्रोल एंड, कहां पे पहुंच गए, जहां पे मेरा लास्ट सेल है ना। तो फर्स्ट सेल में जाने के लिए कंट्रोल होम, और देख मेरे क्लास में मैं ही आ गया देख। दिख रहा है मेरे क्लास में मेरा ही नाम से कोई एंट्री मार रहा है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। लेट मी टेक द अटेंडेंस। नहीं, मेरा अटेंडेंस हम कैसे ले सकते हैं, मेरा अटेंडेंस जो आ रहा है उसको ले, वो लेगा। ओके, नाउ let me take your attendance. Seven C, है ना, 7C. So first one is, आज हो गया 19 तारीख, कौन है, आयुषी वर्मा। वही हम थोड़ा कंफ्यूज कर रहे हैं, आयुषी वर्मा। Yes, Samriddhi, I'll be coming to you. Just let me take the attendance first, okay? समृद्धि स्वरूप, समृद्धि स्वरूप हो गया,
आयुषी वर्मा, अभिनव कुमार, अभिनव कुमार, आशुतोष कुमार, आशुतोष कुमार। इसके बाद कौन है? अथर्व भगत, देन गौरव कुमार, गौरव कहाँ गया? मिल गया, गौरव कुमार। इसके बाद कौन है? माही कश्यप, माही कश्यप, एमडी अलशान, एमडी अलशान। इसके बाद कौन है? निखिल वाजपेयी, निखिल वाजपेयी। इसके बाद निशु राज। कौन गया है बीच में से? आयुषी वर्मा। सर आप ही के नाम से जो था वही अभिनव चला कुमार गया। गया है ना? नहीं सर, जो आप ही के नाम से लॉगिन करके आया था वो। यस। तो निशुराज के बाद है पलक, पलक, देन नीचे जाते हैं फटाक से, पलक राज। फिर हो गया प्रगति प्रेक्षी, प्रगति प्रेक्षी हो गया, प्रिंस राज, प्रगति प्रेक्षी, प्रिंस राज जी है क्या? जी ही होगा, और तो कोई है नहीं। देन राशि प्रिया, राशि प्रिया। उसके बाद है रोशन, रोशन, सतीश कुमार, सतीश कुमार, सतीश कुमार। सतीश कुमार के बाद है शौर्या, शौर्या कुमार। देन वी हैव श्याम, श्याम, श्याम के बाद सोनाक्षी प्रिया, सोनाक्षी प्रिया। देन वी हैव सूरज कुमार, सूरज कुमार। सूरज कुमार के बाद है सत्यम कुमार, सत्यम कुमार को भी लिख ही देते हैं। और लास्ट में है वंदना रंजन। यस समृद्धि, स्पीक आउट। Sir, can you please tell me that have you given the answers of chapter 3 or not? वेट समृद्धि, जरा सा रुको रुको मेरा, वेट, आई हैड मिस्ड समथिंग। मेरा एक्चुअली हेडफोन। यस समृद्धि, यू कैन स्पीक नाउ। Sir, can you please tell me that have you given the answers of chapter 3 or not? No, I had not given the answers of chapter 3. Okay, sir. Thank you. We will do it later after finishing this chapter. Okay, both the chapters we'll do Okay. together. Okay. Okay. Do anybody else have any other doubt? Do anybody else have any other doubt? No. Okay then. I think there is a very little time left for the class too. Just let me check out. We have 3 minutes left. So if anybody, any of you have any doubt, you can ask to clear. नहीं है, चलो आज का क्लास खत्म, बाय।